Good morning, everyone. This is your English class, and in this class, we are going to study about our next poem, The Vagabond. So let's begin the class. This poem was written Stevenson, R.L. Stevenson, sorry. So let's warm up first. Look at the picture. Do you feel like visiting any of the places shown in the pictures? Tell your class where you want to go and why. So dear students, these are the pictures I think where you would like to go. So basically, dear students, in this chapter, we are going to talk about a person who is called vagabond. So vagabond is such a person who likes to keep moving without job, without purpose, and basically he is a homeless or jobless person. यानी कि वैगाबोंड एक ऐसा पर्सन होता है जो बिना पर्पस के बिना जॉब के घूमना फिरना पसंद करता है उसको इसी तरह की लाइफ जो होती है पसंद आती है राइट सो अबाउट दिस पर्सन वी आर गोइंग टू read in this poem. Firstly, we will recite the poem, then I will make you understand this poem line by line. Okay, so let's begin. Give to me the life I love, let the leaf go by me, give the jolly heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see, bread I dip in the river. There is a life for a man like me, there is a life forever. Let the blow fall soon or late, let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love, nor a friend to know me. All I seek the heaven above and the road below me. Or let autumn fall on me, where afield I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger. White as meal the frosty field, warm the fireside haven, not to autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall soon or late, let what will be over me, give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me, all I ask the heaven above and the road. So this is a short poem, but it's a very information giving poem, right? So first of all, let's understand the difficult words of this poem. First word is vagabond. Vagabond means one who wanders without a purpose and does not have a home or a job. यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका जो घूमना पसंद करता है बिना किसी पर्पस के, बिना किसी जॉब के, बिना किसी कारण के घूमना फिरना पसंद करता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं वैगाबॉन्ड. नेक्स्ट लेव. लेव मीन्स टू रेस्ट, रिमाइंडर्स. तो लेव का मीनिंग होता है बची हुई चीजें, राइट, रेस्ट और रिमाइंडर्स. Next, byway. Byway means a road that is not often used. एक ऐसा रोड जो अक्सर यूज नहीं किया जाता, बहुत कम यूज किया जाता है. इस चीज को हम हिंदी में पगडंडे भी बोलते हैं, कच्चे रास्ते भी बोलते हैं. नेक्स्ट, नाई. नाई मीन्स ओल्ड इंग्लिश दैट इज नियर, यानी कि कोई चीज का पास में होना, पास. नेक्स्ट, ब्लो. ब्लो मीन्स शोक, मिसफॉर्च्यून, हेयर, डेथ. तो ब्लो का मीनिंग यहाँ पे शोक हो सकता है, मिसफॉर्चून हो सकता है, डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, राइट. नेक्स्ट पेज. फ्रोस्टी. फ्रोस्टी मीन्स कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ आइस, यानी कि कोई चीज किसी आइस की लेयर से कवर होना, ढकी हुई होना. नेक्स्ट, हेवन. हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस, मीन्स शेल्टर, यानी कि ऐसा सेफ प्लेस जहाँ पे कोई जाके थोड़ी देर के लिए सहारा लेता है, वहां पे रहता है. नेक्स्ट, यील्ड. यील्ड मीन्स गिव इनटू, यानी कि ठहर जाना, हार मान लेना, अपने आप को रोक लेना, दैट इज यील्ड, राइट. नाउ कम बैक, लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम.
So first line, give to me the life I love, let the live go by me. So author says here, author यहाँ पे कहता है कि मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, मुझे उस तरह की लाइफ दो जो मैं चाहता हूँ, लेट द लिव, बाकी जो चीजें बची हुई हैं उनको जाने दो, मुझे उनकी परवाह नहीं है। यानी कि ऑथर कहना चाहता है कि जिस तरह की लाइफ मैं चाहता हूँ उस तरह की लाइफ मुझे दो, बाकी कोई चीजें आप दो या ना दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन, गिव द जोली हेवन अबोव एंड द बाई वे नाई मी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे ना एक खुला आकाश चाहिए, मेरे ऊपर खुला आकाश चाहिए और मेरे साथ चलने के लिए एक बाईवे हो, मेरे साथ में, मेरे पास में एक चलने के लिए रोड हो। तो ये कहना चाहता है कि मुझे इस आसमान के नीचे रहना है, मुझे सिर्फ चलते जाना है, मुझे सिर्फ रोड चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन, बेड इन द बुश विद द स्टार्स टू सी, ब्रेड आई डिप इन द रिवर। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे खाने के लिए कोई अच्छे खाने की चीजें नहीं चाहिए, ना ही मुझे सोने के लिए अच्छा बेड चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं बुशेस के ऊपर सो जाऊं, झाड़ियों पर सो जाऊं, वही मेरा बेड है, और मैं स्टार्स को देखते हुए, यानी कि इस आकाश के नीचे मैं सो जाऊं, खुले आसमान के नीचे मैं सो जाऊं, तारों को देखते हुए मैं सो जाऊं। मुझे कोई अच्छी तरह का कोई बेड, कोई लग्जरियस बेड नहीं चाहिए। फिर कहते हैं ब्रेड आई डिप इन द रिवर। तो कहते हैं कि मुझे एक सिंपल सी रोटी, सिंपल सा ब्रेड चाहिए, मैं कोई चाय या कॉफी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सिंपल पानी के साथ, रिवर के पानी के साथ भी उसको खा लूं। Then next line, there is a life for a man like me, there is a life forever। तो कहता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए यही लाइफ अच्छी होगी, यही लाइफ मुझे पसंद है, और ये लाइफ मुझे सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर चाहिए, राइट। O3 यहाँ पे ऐसा कहता है। नेक्स्ट लाइन, let the blow fall soon or late, let what will be over me। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाने दो। जो ब्लो का मीनिंग है यहाँ पे डेथ है, मृत्यु है। तो कहता है कि चाहे मेरी मृत्यु अब हो या बाद में हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, जो भी होगा मेरे साथ मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। ऑथर ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट, गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी। वो कहता है कि मुझे सिर्फ नेचर का साथ चाहिए और मेरे पास में रोड होना चाहिए। यानी कि वो कहना चाहता है किसी घर में नहीं रहना चाहता, उसकी मृत्यु अब हो जाए, बाहर हो जाए, बाद में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चाहता है कि वो नेचर के साथ रहे, वो घूमता है। नेक्स्ट लाइन, वेल्थ आई सीक नॉट, होप नोर लव, नोर अ फ्रेंड टू नो मी। इन दो लाइनों में ऑथर कहता है कि उसको वेल्थ भी नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं वेल्थ को भी नहीं, यानी कि धन दौलत को भी नहीं लेना चाहता, उनके पीछे भी नहीं भागना चाहता। होप नोर लव, और ना ही मुझे किसी के प्यार की जरूरत है, ना ही मुझे पैसा चाहिए, ना ही किसी के प्यार की जरूरत है। नोर ए फ्रेंड टू नो मी, और ना ही मुझे ऐसा कोई दोस्त चाहिए जो मुझे अच्छे से जानता हो। तो वो कहता है कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे दोस्त चाहिए, ना मुझे प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मेरे पास रास्ता हो और मैं घूमता रहूं। नेक्स्ट लाइन, ऑल आई सीक द हेवन अबोव एंड द रोड बिलो। तो जो भी कुछ मैं चाहता हूँ, मांगता हूँ, वो क्या है कि मेरे ऊपर हेवन, यानी कि नीला आकाश मेरे ऊपर हो और मेरे साथ में रोड और मैं चलता रहूं। नेक्स्ट, ओ लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर अ फील्ड आई लिंगर। तो कहता है कि चाहे मेरे ऊपर ऑटम गिर जाए, यानी कि ऑटम मेरे ऊपर फॉल हो जाए, यानी कि जहां मैं ठहरता हूँ। लिंगर का मीनिंग होता है ठहरना, राइट। तो फील्ड मतलब खेत। तो कहता है जहां पे मैं ठहरता हूँ, चाहे वहां पे किसी भी तरह का मौसम आ जाए, यानी कि ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं इस तरह के मौसम में भी बाहर रहना पसंद करूँ। फिर कहता है साइलेंसिंग द बर्ड ऑन द ट्री, बाइटिंग द ब्लू फिंगर। तो ये इन दो लाइनों में कहना चाहता है कि मैं उस समय भी घर से बाहर रहना चाहूंगा, घूमना चाहूंगा, नेचर के साथ रहना चाहूंगा, चलना चाहूंगा, जब बर्ड्स साइलेंस हो जाती है, यानी कि ट्रीज पे नहीं बैठती। ऐसा तब होता है जब विंटर होती है, तो अक्सर वहां से उन पेड़ों पे नहीं बैठती और ऐसे स्थान पे चली जाती हैं बर्ड्स जहां पे गर्मी होती है।
तो वो कहना चाहता है कि जब सर्दी के दिन इतने हो जाएंगे कि बर्ड्स भी वहां पे साइलेंस हो जाएंगी, यानी कि बर्ड्स वहां पे नहीं होंगी। बाइटिंग द ब्लू फिंगर, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सर्दी होना, कि जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी तब भी मैं यही चाहूंगा कि मुझे नेचर का साथ मिले, मैं इस नीले आकाश में नीले आकाश के नीचे रहूं और सड़कों पे और पगडंडियों पे चलता रहूं, मुझे इसी तरह की लाइफ चाहिए। फिर कहते हैं वाइट एज मील द फ्रोस्टी फील्ड, वार्म द फायर साइड हेवन। तो कहते हैं कि चाहे किसी तरह का मौसम हो, चाहे इतनी बर्फ पड़ जाए कि जो खेत होते हैं वो ढक जाएं, वो इस तरह बन जाएं जैसे जैसे कोन का मील होता है, मक्की का आटा होता है, उसकी तरह वाइट दिखाई देने लगे जो हमारे खेत हैं। इतनी ठंड पड़ जाए, इतनी बर्फ गिर जाए, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। वार्म द फायर साइड हेवन, यानी कि इस तरह के मौसम में अक्सर क्या होता है, लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं और जो फायर साइड होती है वहां उस शेल्टर में जाके बैठ जाते हैं अपने आप को गर्माहट देने के लिए। तो कहता है कि इस मौसम में भी मैं चाहूंगा कि मैं घर से बाहर रहूं। नोट टू ऑटम विल आई यील्ड, नॉट टू विंटर इवन। तो लास्ट टू लाइंस पे वो कहता है यहाँ पे कि मुझे ना तो ऑटम रोक सकता है, हरा सकता है, ना ही विंटर, यानी कि वो कहना चाहता है किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे ऑटम हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, तो मुझे किसी भी तरह का जो वेदर है, सीजन है, मुझे नहीं रोक सकता। मैं नहीं चाहता हूं मैं घर के अंदर रहूं, मैं बस घूमना चाहता हूं। नेक्स्ट स्टेंजा, let the blow fall soon or late, let what will be over me give the face of earth around and the road before. इन चार लाइंस में आगे वो वही बात कहता है कि चाहे मेरी मृत्यु अब हो जाए, ब्लो मीन्स डेथ, तो चाहे मेरी डेथ अब हो जाए या बाद में हो जाए, मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। बस मैं एक ही बात चाहता हूँ कि मुझे फेस ऑफ अर्थ अराउंड, यानी कि नेचर का साथ मिलता रहे, यानी कि मैं बाहर घूमता रहूं और मेरे साथ में रोड हो ताकि मैं चलता। लास्ट स्टेंजा, वेल्थ आई आस्क नॉट, hope nor love, nor a friend to know me, all I ask the heaven above and the road below. फिर वो वही बात दोहराता है, ऑथर कहता है कि ना तो मुझे वेल्थ चाहिए, धन दौलत चाहिए, ना ही मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे लव मिले, प्यार मिले, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड हो जो मुझे अच्छे से जानता हो। कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मैं चाहता हूँ वो हेवन अबोव, यानी कि मेरे ऊपर आकाश हो और मेरे साथ में रोड हो और मैं चलता, right? So dear students, this is all about